Hello everyone. In this video, I'm going to teach you accounting for not-for-profit organization. After going through this topic, you will be able to understand the important items related to the not-for-profit organizations like subscriptions, life membership fees, entrance fees, donations, endowment fund, legacy, sale of old assets, sale of periodicals, honorarium, grant, etc. And you will be able to solve the practical problems of preparation of final accounts. So let us start the discussion of the important items. Number 1 is the subscription. Subscription is a membership fee paid by the members on regular basis. This is the main source of income of the NPOs. Subscription paid by members is shown as a receipt in receipt and payment account, and it is an income, so it is shown in income and expenditure account in income side. Second is the donations. Donation is a sort of gift in cash or property received from some person or the organization. It appears on the receipt side of receipt and payment account, and donations can be for specific purpose or for general purpose. Let us discuss the specific donations. If donation is received for a specific purpose, then it becomes a specific donation. So it cannot be used for any other purpose but for the purpose the donation has been received for. The examples are donation received for the extension of the existing building, for the construction of a new computer lab, for creation of a book bank, etc. Such donation is to be capitalized and to be shown on the liabilities side of the balance sheet. So it doesn't matter whether the amount of the donation is big or small. If it has been received for a specific purpose, then it should be used only for the specified purpose. Second is the general donations. Such donations are to be utilized to promote the general purpose of the organization. These are treated as the revenue receipts, as it is of a regular source of income, hence taken to the income side of income and expenditure account of the current year. Now, the third important point is the legacies. Legacy is the amount received as per the will of a deceased person. Deceased means a died person who may or may not specify the use of the amount. Legacies, use of which is specified, are called the specific legacy, and it is to be shown in the balance sheet as a liability. But if the use is not specified, it is considered as a revenue item and credited to income and expenditure account. The fourth point is the life membership fees. Some members prefer to pay the lump sum amount as the life membership fees. So instead of paying the periodic subscription, so such amount is treated as a capital receipt and it is to be credited directly to the capital fund in the balance sheet. Fifth item is the entrance fees. Entrance fees, also known as the admission fees, is paid only once by the member at the time of becoming a member. In case of organizations like clubs and some charitable institutions, entry is limited and the amount of entrance fees is quite high. So, for those type of organizations, it is treated as a non-recurring item and credited directly to the capital or the general fund. But for some organizations, the amount is not that big. So, they treat it as a revenue item and show it as an income in income and expenditure account. So, we need to check our question carefully before giving a particular treatment. Sixth item is the sale of old assets. Receipts from the sale of old asset appear in the receipts and payment account of the year in which it is sold
and any gain or loss on the sale of the asset is taken to the income and expenditure account. If it is a gain, on which side? Credit side. If it is a loss, then on the debit side of income and expenditure account. This point will be more clear to you with the help of an example. For example, if an item furniture whose book value is rupees 800 is sold for rupees 700, this amount of sale proceeds rupees 700 will be shown as receipt in receipts and payment account, and rupees 100 on the expenditure side of income and expenditure account as a loss on sale of old asset. And while showing furniture in the balance sheet, rupees 800 will be deducted from its total book value. I'll show you how. For example, this is the receipt and payment account. As I discussed, rupees 700 is the sale proceeds, so it will be shown on the receipt side. Sale of furniture 700. Now, in this particular transaction, there is a loss of rupees 100. So, this loss will be shown on the debit side to loss on sale. How much? 100 rupees. And treatment in the balance sheet. Now, the book value of the furniture was 800. So, from the head furniture, you will subtract the book value of the item sold, which is 800. So, 800 will be subtracted. So, this is how we make the treatment of any sold item. Next is the sale of periodicals. It is an item of recurring nature and shown as the income in the income side of income and expenditure account. Another one is the sale of sports material. The old used sports material like old balls, bats, net, etc. It is a regular feature with any sports club. So, it is shown as an income in the income and expenditure account. Ninth point is the payment of honorarium. It is the amount paid to the person who is not the regular employee of the institution. Like payment to an artist for giving performance at the club is an example of honorarium. So, this payment of honorarium is shown on the expenditure side of income and expenditure account. 10th one is the endowment fund. It is a fund arising from gift, the income of which is devoted for a specific purpose. So, the purpose is specified, hence it is a capital receipt and shown on the liabilities side of the balance sheet. The 11th point is the government grant. Schools, colleges, public hospitals, etc. they depend upon government grant for their activities. The recurring grant in the form of maintenance grant is treated as a revenue receipt and credited to income and expenditure account. Now, I will show you, you can see three accounts are there: receipt and payment account, income and expenditure account, and the balance sheet is given. So, how we are going to do the treatment? एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आपको रिसिप्ट साइड पे जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, ग्रांट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इन सभी की अब आपको लेजर पोस्टिंग कंप्लीट करनी है. कहाँ ले जाके? ये सभी आइटम्स आपकी या तो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, या इनमें से कुछ चीज़ें आपकी जा सकती हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे. कैसे, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है इन चीज़ों की नेचर पर कि क्या ये रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं या कैपिटल नेचर की आइटम हैं. अब हम चेक कर लेते हैं. जैसे सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू नेचर की आइटम है, इसीलिए रेवेन्यू नेचर की आइटम होने के कारण हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे. तो लिख दूंगी मैं बाय सब्सक्रिप्शन. सेकेंड आइटम मुझे दी हुई है ग्रांट. तो ग्रांट भी जो है हमारी, ये भी क्या होती है? ये भी एक
रूटीन में मिलने वाली चीज़ है, तो इसे भी इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे मैंने शो किया बाय ग्रांट। नेक्स्ट आइटम आपको दी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये डोनेशन जो है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, मुझे ये बिल्डिंग बनाने के लिए मिली, तो मैंने इसे कहाँ शो करना है? ये जो डोनेशन है आपकी ये शो हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगी ये? लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटीज साइड पे मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब अगली आइटम आपको दे रखी है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है रूटीन में मिलता है, तो रूटीन में मिलने वाली चीज़ें मैंने कहाँ दिखानी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो ये क्रेडिट साइड पे आया। ऐसे ही हम पेमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो पेमेंट्स जो है उनमें से कुछ पेमेंट्स आपकी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे और कुछ होंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चेक कर लेते हैं, जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लेकर जाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो मैं यहाँ लिख दूंगी एसेट साइड्स पे, यहाँ आ जाएगा हमारा फर्नीचर। नेक्स्ट आइटम आपको दिए हैं टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस जो हैं आपकी वो रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में टेलीफोन चार्जेस। ऐसे ही सैलरीज दी हुई है नेक्स्ट आइटम, तो ये भी आपकी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिमिलरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो देखा कितना इजी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें रेवेन्यू नेचर की होंगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी, और जो कैपिटल नेचर की होंगी वो आप लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में। अब एक क्वेश्चन के जरिए हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। From the receipt and payment account given below, prepare the income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ended March 31st, 2017। तो ये मेरे पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। इसमें मैं चेक करूँगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जानी है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाना है जिनकी नेचर रेवेन्यू है। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड की चीज़ों में देखते हैं कि कौन सी हैं जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये कैश इन हैंड है, ये हमारा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा, तो इस पर क्रॉस लगा देती हूँ मैं। नेक्स्ट मैंने देखा सब्सक्रिप्शन। यस, अभी अभी हमने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन जो है ये रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो इसे इनकम एक्सपेंडिचर में हम लेकर जाएंगे। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस जो है ये भी अगर कोई हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम इसे कौन सी नेचर की आइटम मान के चलते हैं? इसे हम रेवेन्यू नेचर की आइटम मानते हैं, और इसे हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऐसे ही हमें यहाँ पे दे रखी हैं डोनेशंस। डोनेशंस का भी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो हम इन्हें भी कहाँ लेकर जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेंट ऑफ हॉल, रेंट रिसीव्ड है ये आपका, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये नहीं आता, लेकिन हाँ इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो ज़रूर आएगा, तो हमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लेकर नहीं जाना, क्योंकि ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पर, और इसे क्या करना है आपको? इसे आपको माइनस करना होता है इन्वेस्टमेंट्स में से। चलिए अब देख लेते हैं कि ये चार आइटम्स हमारी कहाँ कहाँ हैं। देखिए इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन आया, एंट्रेंस फीस आई, डोनेशन आया और रेंट ऑफ हॉल आया। इन सभी आइटम्स को हमने क्या कर लिया? यहाँ पे टोटल कर लिया, जो कि है 27,000। अब चलते हैं हम अपनी पेमेंट्स की तरफ। तो पेमेंट्स हमें कौन कौन सी हैं जो हमें कंसिडर करनी है? ओनली रेवेन्यू नेचर की, तो सैलरी भी आएगा, रेंट भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस आएंगे। बुक्स परचेज नहीं आएंगी, ये क्या है? एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ये भी नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग में। एफडी विद बैंक भी नहीं आएगा, अगेन बैलेंस शीट, क्लोजिंग। और इसी प्रकार से जो आपको क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड
और एट बैंक दिया है, ये भी नहीं आएगा, ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट क्लोजिंग में। तो हमारे पास टोटल जो कितनी आइटम्स हैं, 6 आइटम्स हैं जो पेमेंट साइड पे गई हैं। तो देखिए, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन आइटम्स को हमने डेबिट साइड पे लिखा इनकम एक्सपेंडिचर के, और इनका टोटल किया। टोटल जो था हमारा वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया। फिर ये हमने दोनों तरफ लिख लिया, बैलेंसिंग फिगर निकाली, और ये बैलेंसिंग फिगर हमारी 18,200 की आई, विच इज़ अ सरप्लस। और इस सरप्लस को हम फिर कहाँ लेकर जाते हैं, इसे हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, कैपिटल फंड में, और उस कैपिटल फंड में हम उसे क्या कर देते हैं, हम उसे कर देते हैं प्लस। तो देखा कितना इजी है इसका ट्रीटमेंट। बिल्कुल क्लास 11th की ही आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं वो आपको ध्यान में लेकर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे भी हम अब समझेंगे बहुत केयरफुली। From the following receipts and payment account and additional information relating to Excellent Cricket Club, prepare the income and expenditure account for the year ended March 31st, 2015 and the balance sheet. तो हमें इसमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाने के लिए बोला गया है, और हमें साथ में इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो देखते हैं हमारे पास क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एसेट्स जो हैं बिगिनिंग में दे रखे हैं, जैसे प्लेग्राउंड, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब है कि ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये सारी की सारी जो आपको एसेट्स की जानकारी दी हुई है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। तो हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में इन सभी इन्फॉर्मेशन को डालेंगे। तो मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग वाली, और ये सारी जानकारी वहाँ पर हम डालेंगे। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन। डोनेशंस एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट से मिलने वाली डोनेशन या उससे होने वाला सरप्लस आर टू बी केप्ट इन अ रिजर्व। वो हमें एक रिजर्व बनाना है फॉर परमानेंट पवेलियन, पवेलियन के लिए। तो ये स्पेसिफाइड हो गया हमारा पर्पस। तो इसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन मार्च 31st, 2015 42,000, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो इसको भी हमें ध्यान में लेके चलना है। इसे हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आएगा, और दूसरा हम इसे सब्सक्रिप्शन जो होगी हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे, उसमें इसको प्लस कर लेंगे। ऐसे ही हमें राइट ऑफ करने के लिए बोला है, 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल राइट ऑफ करना है, और 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी क्या करना है, राइट ऑफ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम वाइज पूरी को स्टडी करते हैं। पहली रिसिप्ट हमें जो दे रखी है वो कैश इन हैंड का ओपनिंग है, तो ये हमें कहाँ लेकर जाना है, बैलेंस शीट ओपनिंग, और ये जाएगा एसेट साइड पे। इसी प्रकार से एक और आप देखेंगे यहाँ बैंक ओडी दे रखा है। बैंक ओडी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक ओडी जो है इसमें आपको अगेन बैलेंस शीट में लेकर जाना है, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में और एसेट साइड पर। नेक्स्ट आइटम हमें दे रखी है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। मेंबर्स एडमिशन फीस अगेन इनकम एक्सपेंडिचर, और जो भी चीज़ें रिसिप्ट साइड पे दी होंगी रेवेन्यू नेचर की, वो आपको पता है कहाँ जाएंगी इनकम एक्सपेंडिचर की, क्रेडिट साइड पे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ये भी आएगा। पुरानी चीज़ें अगर हम बेच देते हैं तो ये रूटीन की आइटम होती है। हायर ऑफ ग्राउंड जो है ये भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट ये जो है ये आप बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी बैलेंस शीट में, और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो है ये भी कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो देखते हैं रिसिप्ट साइड हमारी जो है वो हमने कैसे बनाई। ये देखिए हमने यहाँ पे इनकम साइड पे लिखा अपना सब्सक्रिप्शन, जो कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट से लिया। इसी प्रकार से हमने एडिशनल इन्फो में पढ़ा था कि हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की 42,000 है, उसे हमने प्लस किया। लास्ट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, वो हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट की, और ये हमारा फाइनल अमाउंट 2,64,000 का सब्सक्रिप्शन का आया। ऐसे ही हमने
एडमिशन फीस को लेना है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को लेना है और रेंट ऑफ हॉल को लेना है। तो मेन हमारी 1 2 3 4 मेन इनकम की आइटम है जिसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया और इसका हमने टोटल कर लिया जो कि है 3,09,500। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो कौन कौन से हैं जो हमें लेने हैं। तो पेमेंट साइड पे हम सबसे पहले देखते हैं अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, अगेन इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू नेचर की आइटम। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हैं ये आपको कहाँ ले जाने हैं, बैलेंस शीट में, और कहाँ से माइनस करने हैं, जो आपको मिल रखी है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ये जो आपको दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, उसमें से घटाना, तो बैलेंस शीट में ले जाना है। रेट्स एंड टैक्सेस, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टेलीफोन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पोस्टेज एंड कोरियर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कुछ हमें राइट ऑफ भी करना था तो वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। मिसलेनियस जो है एक्सपेंसेस, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ग्रास सीड्स, इनकम एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो हैं इनको भी हम कहाँ लेकर जाएंगे, इन्हें भी हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो कंज्यूमेबल आइटम है उसको निकालेंगे, तो जो बच जाएगा वो हम लेकर जाएंगे अपना, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का वो लेकर जाएंगे हम अपनी बैलेंस शीट में। और जो बैलेंस कैरी डाउन है आपके कैश इन हैंड का, ये भी हम कहाँ लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो देखते हैं हमारी एक्सपेंडिचर साइड पे क्या क्या चीज़ें आई। अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड कोरियर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जो हमने इस साल पेमेंट की थी वो 26,000 थी। पिछले साल का ओपनिंग हमारे पास 11,000 रुपये था। अवेलेबल फॉर यूज़ इन दोनों को टोटल करके 37,000 आया। जो हमारे पास क्लोजिंग बच गया इस साल वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि कितना है, 25,900, और जो यूज़ हो गया वो आपका 11,100 है। ऐसे ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हमने लिया, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, ग्रास सीड्स ली, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ये भी हमने निकाला। कैसे, ओपनिंग जो लास्ट ईयर का था वो, उसमें इस साल जो हमने और परचेज़ किया ऐड किया, और जो हमारे पास बच गया क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 76,500। क्योंकि हमें स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि 50% जो था वो हमने क्या कर दिया था, राइट ऑफ, तो वो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 50,000 विच इज़ 76,500। तो आपने अपने डेबिट साइड का टोटल किया, उसे आपने क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया 52,400, जो कि हमारा सरप्लस है, और ये हमें लेकर जाना है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और अगेन इसे आपको किस में ऐड करना है, कैपिटल फंड में। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कैसे बनाई वो आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था ये जो कैश इन हैंड है हमारे पास, ये हमने अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसको लिया है। ऐसे ही आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने देखा था कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो वो भी हमने लाइबिलिटी साइड पे कंसिडर किया। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये जो ब्रॉट डाउन था इसे हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकर गए थे। ऐसे ही हमने अपनी जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो लिखी, हमारी लास्ट ईयर का जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था वो लिखा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो बैलेंस रह गया था वो हमने लिखा, प्लेग्राउंड का बैलेंस आपको दिया था। तो ये सारी आइटम्स जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिगिनिंग में दे रखी थी वो सारी आइटम्स हमने लिखी, और ये 2 आइटम्स जो हैं ये हमने अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लिखा। बाकी की 4 आइटम्स आपको एडिशनल इन्फो में गिवन थी। तो इसका टोटल किया विच इज़ 6,42,000, और इस टोटल में से आपने अपनी लाइबिलिटीज़ को घटाया तो कैपिटल फंड निकल कर आ गया 6,26,000।
अब हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस था कैश इन हैंड का, वो आपने यहाँ पे लिखा 74,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 42,000, इसको लिखा। आपका जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बच गया था वो हमने लिखा। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी हमने लिखा। इन्वेस्टमेंट्स हमने कुछ परचेज की थी वो। और ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने देखा कि प्लेग्राउंड की इन्फॉर्मेशन थी तो वो भी हमने लिखी। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पे हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट को बना के अपना कैपिटल फंड फाइंड आउट किया था, तो उसी से हमने शुरुआत की। तो ये हमारा क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है। इस ओपनिंग बैलेंस में हमारा जो सरप्लस निकल कर आया था वो हमने इसमें प्लस किया। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमें मिल रखी थी तो वो हमने यहाँ पे प्लस कर ली है। देन आपके पास पेवेलियन फ़ंड की अगर हम बात करें तो पेवेलियन फ़ंड हमने कैसे बनाया? जो आपके पास टूर्नामेंट से आए रिसिप्ट्स थे उसमें से कुछ टूर्नामेंट के आपके एक्सपेंसेस भी हुए 40,000, वो आपने घटा दिए तो बचे 20,000, वो आपने पेवेलियन फ़ंड के अंडर ही लिखे। और डोनेशन मिला था पेवेलियन फ़ंड के लिए 6 लाख रुपीज़ का, तो वो भी लिखा। तो इनको जोड़कर हमारे पास 6,20,000 का पेवेलियन फ़ंड बन गया। तो इन लाइबिलिटी साइड का हमने टोटल किया विच इज़ 13,18,400। तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल जो है वो इक्वल आ गया। तो बहुत इजी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, बहुत आसानी से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।